Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Class 12, subject maths, mathematics, topic determinants. This is chapter number 4 of NCERT textbook. Now, dear students, lastly we completed the chapter number 3, that was matrices. Today we will take the fourth chapter, that is determinants. As dear students, you know that if we take a matrix, a square matrix, 1, 2, 3, 4, and you know that a square matrix or a rectangular matrix was simply an array of elements or arrangement of elements, and it was not associated with a particular number. Now, if we talk of determinant to every corresponding to every square matrix, a unique number is associated, or we can say that we can associate a unique number with a square matrix called the determinant of a square matrix. That is, we can say that corresponding to any square matrix, there exists a real number, or we can say that a unique number may be a real number, or it may be a complex number. So we associate a unique number with a square matrix, and this unique number is called the determinant of matrix A. For example, if we take the same matrix, square matrix A, or we can say that the determinant of matrix is denoted by the determinant of square matrix is denoted by this sign, determinant of A. This is symbol determinant of A, or simply we can denote it by determinant A. By this symbol, or by this symbol, we write determinant of A or determinant of A. This A inside these two bars is a square matrix. This is a square matrix. It is a determinant of A, and this determinant of A, this sign should not be confused with modulus of A.
It should not be confused with modulus. It is not read as. It is not read as modulus of A. Modulus of A. Although it is the sign. In the modulus we denote a number, modulus of number like this, modulus of 3 or modulus of -3. Modulus of negative number is always positive. Positive is always positive. This number should not be linked with this modulus. Modulus. It should not be confused. One should not be confused that this sign here is modulus of A. No, it is determinant of A. It means the matrix is associated with a real number. That real number is called a determinant of this matrix, square matrix A, and that is denoted by this sign, determinant of A. Square matrix, this A inside these two bars is a square matrix, or we can simply write like this, determinant of A. And dear students, you should know one thing. A matrix which is not a square matrix does not have a determinant. उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है. ये बात आप समझ गए. ए मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट only possesses to the square matrix, or we can say that a square matrix possesses determinant. यानी डिटर्मिनेंट खाली हम किन मैट्रिक्स का ले सकते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, और the rectangular matrix or any other type of matrix cannot have determinant. Now determinant of matrix of order 1, determinant of matrix of a square matrix, always write square matrix of order 1, that is, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, इसमें एक ही एलिमेंट है A11, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स हम इन ब्रैकेट्स में रखते हैं एलिमेंट्स. ये मैट्रिक्स के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं और डिटर्मिनेंट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं. ये दो अलग अलग हैं. ये मैट्रिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो this, if A is a matrix of order 1 by 1 of order this, इसका ऑर्डर जो है 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसका डिटर्मिनेंट खाली यही एलिमेंट ही होगा, दिस A11 एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें खाली ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल, it contains only this element 3, so determinant of A is 3. If we have an A matrix, it has -5, only one element, what will be the determinant of this matrix? Determinant of this matrix will be only, हम ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये होगा -5 ही होगा इसका डिटर्मिनेंट. सो matrix which has only one element has that element as the its matrix. Now matrix of order 2, determinant of matrix, determinant of square matrix of order 2
2 यानी 2 बाई 2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है इन सिंबल्स A11 पहला एलिमेंट पहला रो, A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 मैट्रिक्स, 2 बाई 2 मैट्रिक्स, और इसको हम ऑर्डर 2 मैट्रिक्स कहेंगे, 2 rows and 2 columns. So what will be its determinant? We write determinant of A just like this, and determinant बार में ये एलिमेंट्स हम रखेंगे A11 A12 A22 A21 and A22. So determinant of this will be, we already told you that determinant of a matrix is associated we associated unique number. It gives us a unique determinant of a matrix, gives us a unique number. So this number will be found by cross multiplying this A11 into this A22 minus this A12 into A21. So this number we can find A11 into A22 minus A12 into A12 into A21. So we can find determinant just like this. For example, अगर हम नंबर्स वाली एक मैट्रिक्स लेंगे, A मैट्रिक्स लेंगे हम 2 3 1 से 4, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 और ऑर्डर 2, तो इसका डिटर्मिनेंट, फाइंड इट इज डिटर्मिनेंट, वी कैन फाइंड इट इज डिटर्मिनेंट एज डिटर्मिनेंट, वी राइट इन सिंपल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 3 1 4, and you can find this determinant 2 into 4 minus 3 into 1, 3 into 1. तो अभी मैंने बताया आपको A11 into A22 माइनस करना है A12 into A21 या A21 into A12, तो ये हमें मिलेगा 8 minus 3, that will be 8 minus 3 will be 5. So determinant of this matrix is determinant of this square matrix of order 2 is 5. This is a unique number. यही बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिव्स अस ए यूनिक नंबर. सो दिस इज अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नाउ इफ वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, if we have a square matrix of order 3, say we have this type of matrix A11 A12 A22 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. These are the elements of matrix. Elements A, this is of order 3 by 3 matrix. So how we can find the determinant of this matrix whose order is 3 by 3? Dear students, due to the shortage of time, I will मैं मकसद तौर पर आपको ये बताऊं कि ये जो मैट्रिक्स है 3 by 3 मैट्रिक्स, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं कि इसमें 3 रोज हैं. दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 हैज 3 rows and 3 columns. We can expand this matrix along 3 rows or 3 columns. यानी हम किसी भी रो के जरिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 के जरिए या रो 2 के जरिए या रो 3 के जरिए, या कॉलम 1 के जरिए हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के जरिए एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 3 के जरिए एक्सपेंड कर सकते हैं. द वैल्यू विल बी सेम
every time we get the same value. If we expand this with the help of row 1, we will get the same value, or if we expand it with the row 2 or row 3, we will get the same value. If we expand through column 1 or with the help of column 2 or with the help of column 3, in all the 6 ways we can get the same determinant value. We can get the same value of this मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. तो एनी भी रो से अगर हम फॉर एग्जांपल हम इस रो से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम इसका वैल्यू टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. वी expand A with the help of row 1. तो रो 1 के जरिए इसमें एक रूल है. ये रूल आप सीख लें. ये रूल क्या है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैसे निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट. ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है. इसी तरह से ये A21, A22, A23, A31, A32 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जरिए से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू. सो लेट्स टेक दिस अलोंग द रो 1. अगर रो 1 के जरिए से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम ये लिखेंगे A11 इंटू इसको करेंगे हम -1 पावर, इसका जो यहाँ पर ये प्रीफिक्स 1 है, आयत रो एंड आयत कॉलम जो होता है. आयत रो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये A11 जो है ये एलिमेंट कहाँ पर, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे आयत रो एंड आयत jth कॉलम 1+1 इंटू करेंगे कोफैक्टर, इंटू करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A11. तो क्या करते हैं हम ये काम करते हैं, हम इसको ये रो डिलीट करते हैं और ये रो डिलीट करते हैं. तो यहाँ क्या बचता है A22, A23, A32, A33. तो प्लस इसी तरह से ये एलिमेंट लेते हैं हम A12 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए -1 पावर, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1+2 कीजिए यहाँ पर इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये रो, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे. तो हमें यहाँ रहता है इसका डिटर्मिनेंट A21, A23, A31 एंड A33. और इसी तरह से अब ये जो थर्ड एलिमेंट इसका है फर्स्ट रो का, दैट इज A13. तो यहाँ पर पहला फर्स्ट रो इज कैंसल्ड, डिलीटेड एंड दिस थर्ड कॉलम इज डिलीटेड. सो वी गेट हियर A13 और इसको -1 पावर करेंगे 1+3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ कौन सा डिटर्मिनेंट आप बच गया, ये डिटर्मिनेंट, ये हमने डिलीट करके हमें यहाँ बच गया A21 और A22 और इसी तरह से A31 और A32. तो बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सम करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट A मिलेगा. फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा, यहाँ आप देखो A11 -1 पावर 1+1 2, यहाँ आप देखिए -1 पावर 2, -1 पावर इवन नंबर जब आएगा तो यहाँ साइन आएगी प्लस. तो यहाँ पहले ही प्लस आएगा A11. जब ऑड आता है -1, यहाँ पर 3 जब आएगा ऑड तो यहाँ पर आएगी साइन -1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलेगा, -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलेगा. तो यहाँ सेम -1 पावर 1+1 दैट मीन्स -1 पावर 2, दैट इज A1 इंटू 1, दैट इज A11. और इसका यहाँ हम करेंगे
यहाँ पर हम करते हैं इनका जो अभी हमने डिटरमिनेंट निकाला, इनका मल्टीप्लाई a22 दैट इज a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। और इसी तरह से यहाँ देखिए a12 माइनस 1 पावर 3 इज माइनस, सो यहाँ पर साइन जो मिलेगा माइनस a12 इंटू यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका कोफैक्टर जो हम निकालते हैं, तो यहाँ पर ये निकलेगा a21 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a31। और इसी तरह से यहाँ पर माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 4 a13 इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस a3, तो यहाँ पर जो साइन आएगी प्लस आएगी, प्लस a13 इंटू में आएगा इसका डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट a21 इसको मल्टीप्लाई कीजिए a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। तो इस तरह से अगर हम कोई मैट्रिक्स भी लेंगे जिसमें ये रियल नंबर्स होंगे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनमें प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करना होगा, तो फिर इनको प्लस माइनस करके हमें कोई यहाँ पर नंबर मिलेगा, वो नंबर इस थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, in next video we will take some examples of order 3 cross 3 and we will calculate the determinant of matrix, and we will completely assure you to learn this rule how to put the plus or minus against these numbers। यानी जो भी नंबर हम लेंगे तो हमें कहाँ पर माइनस आएगा, कहाँ पर प्लस आएगा, इंशाल्लाह दैट विल बी लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।